Hey, good morning, students. Here I am with my new topic, glycolysis. Without wasting our time, we just start the topic glycolysis. Glycolysis is simply a mixture of two words, that is, glyco means glucose or any sugar, and the lysis, which means breakdown or splitting. Splitting of sugar is known as glycolysis. Sugar being most probably glucose. Glycolysis is the first step of cellular respiration. Glycolysis also known as EMP pathway because it is given by three scientists, namely Amden, Meyerhoff, and Pernes. That's why glycolysis is also referred as EMP pathway. Glycolysis is the common pathway in both aerobic as well as anaerobic mode of respiration. Here, some important fact about glycolysis. Glycolysis occurs in cytoplasm of the cell. During the process of glycolysis, glucose gets converted into two molecules of pyruvic acid or pyruvate by the partial oxidation of glucose. In plant, this glucose is derived from sucrose. Sucrose is the end product of photosynthesis or storage form of carbohydrate in case of plant. Glycolysis is a multi-step process. Generally, how many it have 10 steps. All steps have different enzymes. Whole process of glycolysis is divided into two process. One is preparatory phase and the second phase is payoff phase. In preparatory phase, ATP is used. It means energy is used. And in the in the payoff phase, ATP molecules are formed or energy is formed. Simply we can say. Uh, Glycolysis is a metabolic process that serves as the foundation for both aerobic and anaerobic cellular respiration. In glycolysis, glucose is converted into pyruvate or pyruvic acid. The glucose, uh, sorry, during the process of glycolysis, the complex sugar that is sucrose or starch is first converted into glucose and fructose. Um, or in case of during the course of glycolysis, the sucrose is first converted into glucose and fructose by the action of invertase enzyme. After this, these two monosaccharides, that is that is glucose and fructose, enters the glycolytic pathway. It is the overall reaction which takes place in the process of glycolysis. Now, come to the next slide. Here we discuss the process of glycolysis stepwise. First step is hexokinase. When sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme called invertase, it is entered in the process of glycolysis, in which first step is hexokinase. In this, glucose is get converted into glucose 6 phosphate. For this process हमें क्या रिक्वायर होता है, कोई एंजाइम चाहिए. सिंपली हमें दिख रहा है कि ग्लूकोज है एक मॉलिक्यूल, उसके सिक्स पोजीशन पे आगे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. इट मीन्स उसके सिक्स पोजीशन पे ग्लूकोज फॉस्फेट ऐड हो रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर?
और ये फॉस्फेट आ कहाँ से रहा है? ये फॉस्फेट हमें मिलता है एटीपी से. इट मीन्स इट इज the step which involved in preparatory phase. Okay, this is the preparatory phase जहाँ पे हमारी एनर्जी यूज हो रही है. एटीपी है, एटीपी से फॉस्फेट रिमूव हुआ विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम. और वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने क्या किया, यहाँ से जो फॉस्फेट रिमूव हुआ था वो हमारा 6th पोजीशन पे ग्लूकोज की ऐड कर दिया, जिससे हमारा क्या बचा, एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन. यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो हमारा रिलीज हो गया और फॉस्फेट हमारा 6th पोजीशन पे ऐड हो गया, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. इज इट क्लियर? Or simply we can say glucose ring is phosphorylated. Phosphorylation is the process of adding a phosphate group or a molecule derived from ATP. In this step, one molecule of ATP is used. Okay, the reaction occurs with the help of enzyme hexokinase. You can write the name of enzyme. और आप एक बात और नोट करेंगे, कोई भी एंजाइम हो उसके एंड में एज वर्ड लगा होता है, ASE. हेक्सोकाइनेज, काइनेज एक सिंपल एंजाइम है, जनरल एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेशन का काम करता है. अब यहाँ पे हमने नाम लिया है हेक्सोकाइनेज. हेक्सो क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज का रिंग है वो हेक्सागोनल रिंग है. ठीक है, उसके ऊपर फॉस्फोरस ऐड करने का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला हेक्सोकाइनेज. नहीं तो हम जनरल इसको काइनेज एंजाइम भी बोल सकते थे. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन. Sorry. Next step is phosphoglucose isomerase. Isomerase क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है उनका. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्या हो जाती है, आइसोमेराइजेशन. आइसोमेराइजेशन के बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. ये आइसोमेराइजेशन का जो काम है वो एक एंजाइम की हेल्प से होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शन है तो वहाँ कोई कैटालिस्ट चाहिए, और बायोलॉजिकल रिएक्शन में जो कैटालिस्ट का काम करता है वो क्या होते हैं, एंजाइम्स. इसीलिए हम एंजाइम्स को बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो जो आइसोमेराइजेशन का जो काम कराता है वो एंजाइम कौन सा है, आइसोमेरेज. तो यहाँ पे इन्होंने पूरा नेम क्या दिया है आइसोमेरेज एंजाइम का. आप सिंपली आइसोमेरेज एंजाइम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा ही नेम लिखना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. अगर आप पूरा नेम लिखते हैं तो अच्छा है, अगर आप पूरा नेम नहीं याद रहता बाय चांस, अगर आप आइसोमेरेज लिख के आते हैं सिर्फ, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है. आइसोमेरेज, फॉस्फोग्लूकोज, क्योंकि फॉस्फेट राइलेटेड ग्लूकोज है इसलिए फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, क्योंकि इसका आइसोमेराइजेशन हो रहा है. ठीक है, this reaction involves the rearrangement of the carbon oxygen bond to transform the 6-member ring structure into the 5-member ring structure. Okay, so this is the second step, which is isomerization. Now come to the next step, which is phosphofructokinase. अब फॉस्फोराइलेटेड फ्रक्टोज तो बन गया था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, पिछली बार हमारा आइसोमेराइजेशन होके अब उसका क्या है, फिर से यहाँ पे देखो काइनेज एंजाइम आया. अब हमें क्लियर है कि जैसे हेक्सोकाइनेज में क्या था, फॉस्फोरस ऐड हुई थी, वैसे यहाँ पे काइनेज है तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, फॉस्फोरस ऐड होगी. ठीक है, अब वो फॉस्फोरस ऐड किस पे हो रही है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे, इसलिए हमने क्या बोला, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हो रही है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की. ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन के लिए जो फॉस्फेट है वो कहाँ से आएगी, फिर से एटीपी से आएगी. फिर से हमारा एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है और फॉस्फोरस ऐड हो रही है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तो फॉस्फोरस हमारे पास पहले से ही थी ये वाली, एक फॉस्फोरस और ऐड हो गई है यहाँ पे, तो क्या हुआ, 2 फॉस्फोरस हो गई, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज
1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, 6 पोजीशन पे तो पहले से फॉस्फोरस था, अब फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फोरस आके ऐड हो गया है, जिसकी वजह से इसका नेम हो गया है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट या फिर बायफॉस्फेट, हम कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, हमारी एनर्जी यूज हो रही है, तो ये भी अभी तक क्या है, प्रिपरेटरी फेज, यहाँ पे भी हमारी एनर्जी यूज हुई है, एटीपी यूज हुई है। और एक और चीज, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन के बीच में PFK लिखा हुआ है। PFK कुछ नहीं है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की ही शॉर्ट फॉर्म है, PF और K। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपली फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ही लिखा हुआ है। ठीक है, now come to the next step, which is fourth step, which is aldolase. Aldolase क्या है? In this step, the enzyme aldolase, which catalyzes the cleavage of fructose 1,6 bisphosphate to yield 2,3 carbon molecule. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सिंपली इस रिएक्शन में जो हमारा ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ठीक है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, वो क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इनके अंदर हमारी 6 कार्बन होती है। ठीक है, अब ये क्या है, हमें पायरुविक एसिड बनाना है, पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो हमें ग्लूकोज को सिंपली ब्रेक तो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में हो ही क्या रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, वो क्या आएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिनका नेम क्या है, एक का नेम तो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, एक फॉस्फेट इस वाले मॉलिक्यूल में आ गई और एक फॉस्फेट इस वाले मॉलिक्यूल में आ गई। इज इट क्लियर? आगे जो ये प्रोसेस चलेगा उसमें इसकी प्रोसेसिंग होगी, इन दोनों की। ठीक है, और ये दोनों क्या है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, इजीली इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। जो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में इजीली कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, which is ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, अब मैंने बोला था कि ये दोनों जो है इजीली इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म है। इंटरकन्वर्टेबल देखो, दोनों में 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है और 1 फॉस्फोरस है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर है, इसीलिए तो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं इजीली। तो इंटर कन्वर्ट कराने के लिए या फिर अपने आइसोमर बनाने के लिए ये दोनों एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, सॉरी ये दोनों क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो आइसोमर बनाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, आइसोमेरेज। यही एंजाइम हमारा सॉरी सेकंड स्टेप पे भी काम आया था, थर्ड स्टेप पे, जहाँ पे क्या हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 3 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, तो वहाँ पे भी आइसोमेरेज एंजाइम आया था क्योंकि आइसोमर्स बन रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में आइसोमर हैं, तो उन दोनों को आपस में कन्वर्ट होने के लिए कोई कैटालिस्ट चाहिए, उस कैटालिस्ट का काम कौन करेगा, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉस्फेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ट्रायोज फॉस्फेट ऐड है तो इसलिए ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, glyceraldehyde 3-phosphate is the only molecule that continue in the glycolytic pathway. So all the dihydroxyacetone phosphate get converted into glyceraldehyde 3-phosphate with the help of enzyme triose triose phosphate isomerase. At this point in the glycolytic pathway, we have 2,3 carbon molecule, but have not yet fully converted glucose into pyruvic acid or pyruvate.
मतलब अभी तक हमें क्या हुआ गया, ग्लूकोज से 6 कार्बन मॉलिक्यूल से हमें 3 कार्बन में तो कन्वर्ट हो गया है ये, लेकिन ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है, पायरुविक एसिड नहीं है। तो अब क्या है, इनकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, ये आगे प्रोसीड होके प्रोसेस होके हमारे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होंगे। फिर जो ये पायरुविक एसिड फॉर्म होगा वो आगे एंटर करता है इनटू एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, विच इज द सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। जैसा कि हमने पहले कहा कि सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वही आगे प्रोसीड होता है, इसीलिए जितना भी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब ये क्या है, इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन रिमूव होएगा। अब वो हाइड्रोजन रिमूव होएगा तो वो कहीं पे ऐड भी होना होगा, तो उसे ऐड करने के लिए क्या लेके आएंगे, NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है, NADH प्लस H पॉजिटिव में, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से एनर्जी कंपाउंड है जो आगे चल के एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, ATP में फॉर्म होते हैं। सिंपल सी बात है, एक होता है कैश और एक होता है चेक। तो हमारा जो ATP है वो कैश है, उसे हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, और ये जो NADH वगैरह फॉर्म होते हैं ये हमारे चेक होते हैं, जिन्हें हमें पहले कैश में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल ATP वगैरह फॉर्म कराने पड़ते हैं और वो आगे हमारे यूज होते हैं, ठीक है। और वी कैन से जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय द कोएंजाइम NAD। इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ऑक्सीडाइज ही हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होती है तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, या ऑक्सीजन ऐड होती है तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, ठीक है, इससे हाइड्रोजन निकल के हमारी NADH हो रही है। तो NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है हमारा वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, which is seventh step. Seventh step involves the enzyme phosphoglycerate kinase. अब मैंने आपको पहले ही बताया था काइनेज एंजाइम का क्या काम होता है, फॉस्फोराइलेशन कराना, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप ही हमारा हेक्सोकाइनेज आया था जो कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नेम से इंडिकेट है, काइनेज है मतलब फॉस्फोराइलेशन हो रही है किसी ना किसी की, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हमारी बिसफॉस्फोग्लिसरेट की नहीं होगी बल्कि ADP की होगी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट की। ADP की फॉस्फोराइलेशन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। ATP क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो गई, यहाँ से एक फॉस्फोरस भी रिमूव हो गया। अब क्या है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, या फिर हम कहीं कहीं पे तुम्हारी बुक में शायद NCERT में यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट दिया हुआ है, 2 ट्रायोज फॉस्फेट। 2 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नेम क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट, या फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, या फिर ग्लाइसैरिक बिसफॉस्फोग्लाइसैरिक एसिड। वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। या फिर ट्रायोज फॉस्फेट ही लिखा हुआ लिख देते हैं उसको भी, ठीक है। आपको नेम लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, या फिर PGK, ठीक है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है हमारा, बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ से फॉस्फेट का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। और वो आके हमारी ADP के साथ ऐड होती है और ADP हमारा ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होता है। अभी तक हमारी जो स्टार्टिंग में था, जो हमारा जहाँ तक हमारा ये जो ट्रायोस फॉस्फेट, यहाँ पे जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हुआ था, जहाँ पे हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक मिनट हम दिखा देते हैं, वो हमारा जो 4th स्टेप था, यहाँ पे जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ था,
यहाँ तक तो हमारा हो जाता है प्रेपरेटरी फेज, यहाँ तक क्योंकि हमारे सिर्फ एटीपी यूज हुए थे, कुछ भी एनर्जी फॉर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज। लेकिन इसके आगे के जो ये स्टेप है, 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th, ये सारे हमारे आते हैं पे ऑफ फेज में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा NADH बना। NADH क्या है, हमारा चेक है जिससे आगे हम एनर्जी इजीली प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, ATP बन रहा है, वो क्या है, वो भी एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी करेंसी है हमारी, कैश है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आता है पे ऑफ फेज में, क्योंकि अब हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अभी तक हमारे 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के यूज हो चुके हैं और बना है सिर्फ एक एटीपी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकाले तो हमारा एटीपी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अभी तक हमें जीरो एनर्जी फॉर्म हुई है, जीरो एनर्जी मिली है, क्योंकि हमारे 2 मॉलिक्यूल पहले यूज हो गए थे और मिला है सिर्फ एक, तो उसकी रिकवरी तो नहीं हुई ना अभी, तो वो हमारी यूज हो चुकी है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका सॉरी नेक्स्ट स्टेप विच इज 8th स्टेप। यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है वो कौन सा यूज हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पे म्यूटेज सिंपल म्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फॉस्फेट ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से, मतलब जो थर्ड पोजीशन पे 3 फॉस्फो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो जाता है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, simply rearrangement of the position of phosphate group on the third phosphoglycerate molecule, making it 2 phosphoglycerate या फिर 2 phosphoglyceric acid. The molecule responsible for catalyzing this reaction is called phosphoglycerate mutase, या फिर जिस एंजाइम की वजह से ये रिएक्शन हो रही है उस एंजाइम का नेम क्या है, phosphoglycerate mutase. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज 9th स्टेप, दिस इज इनोलेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इन दिस स्टेप इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, या फिर PEP भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, फॉस्फो सॉरी वन सेकेंड फॉस्फो enol pyruvate. That's why it is also known as PEP. The reaction is catalyzed by the enzyme enolase, work by removing a water group, मतलब H2O यहाँ से रिमूव हो रहा है, वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो रहा है, और इसे हम सिंपली डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन भी बोल देते हैं। एंड डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो रहा है सिंपली, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ से रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी से भी अगर वाटर कम होता है तो हम उसे डिहाइड्रेशन ही बोलते हैं सिंपली, तो ऐसे यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है इसलिए यहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन बोला है। the specifically of the enzyme pocket allow for the reaction to occur through a series of step 2। ठीक है, इस रिएक्शन के बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं to completed to cover here। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंप्लीट नहीं करते, यहाँ पे हम जनरली सिंपल हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में हमारा सिंपली क्या है, 2 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड या फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है। इसके बीच की जो रिएक्शंस है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, उनको हम रीड नहीं करते हैं जनरली, बस यहाँ पे क्या है, वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। नाउ कम टू द लास्ट स्टेप विच इज पायरुवेट काइनेज। अब हमारा पायरुवेट, एटलीस्ट पायरुवेट तो बना। ठीक है, अब पायरुवेट काइनेज जो है हमारा आगे फॉर्म होगा, फॉर्म करेगा पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे फिर से काइनेज आया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से फॉस्फोराइलेशन होगी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी काइनेज आ रहा है मतलब वहाँ पे फॉस्फोरस ग्रुप ऐड हो रहा है या फिर फॉस्फोराइलेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है उसका जो फॉस्फेट ग्रुप था वहाँ पे, ठीक है, वो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है ADP पर, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा ATP में। ठीक है,
तो हमारा एनर्जी रिलीज हुई, और जो हमारा बचा हुआ मॉलिक्यूल था वो हमारा बन जाता है पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। ठीक है, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ पे क्या है, हमारे सारे टू मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस चल रही हैं, तो यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल एटीपी के रिलीज हुए, यहाँ पे भी हमारे दो मॉलिक्यूल एटीपी के यूज हुए थे, वो सॉरी फॉर्म हुए थे, ये दो ही मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे क्योंकि यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2,1,3 bis phosphoglycerate, मतलब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 2,1,3 bis phosphoglycerate। तो दो मॉलिक्यूल हैं तो दो मॉलिक्यूल से दो फॉस्फोरस रिमूव होंगे तो दो एटीपी बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेट जो एटीपी था वो 0 हो गया था क्योंकि दो एटीपी हमारे यूज हुए थे और दो एटीपी हमारे यहाँ पे फॉर्म हुए, तो नेट एटीपी हमारा प्रोडक्शन हमारा 0 हो गया था। अब फाइनल स्टेप में जब हमारा पायरुवेट बना तो वहाँ पे भी हमारे एटीपी बना, तो यहाँ पे भी सिंपल क्या है, ये फॉस्फोग्लिसरेट सॉरी फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, ये भी टू मॉलिक्यूल्स है क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे जो एटीपी बनेंगे वो 2 एटीपी बनेंगे। तो हमारा जो एटीपी का प्रोडक्शन हुआ वो नेट मॉलिक्यूल कितने फॉर्म हुए हमें, 2 मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, सब कुछ भूल जाओ। हमारे फर्स्ट जो प्रिपरेटरी फेज था वहाँ पे 2 एटीपी यूज हुए थे। ठीक है, फिर बाद में हमारा क्या हुआ, 2 एटीपी फॉर्म हुए। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास, 0 रहा। अब 2 एटीपी हमारे और फॉर्म हो गए, तो हमारा नेट जो प्रोडक्शन हुआ अगर हम देखते हैं तो वो कितना हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। So this is all 10 steps are together in this diagram. Can easily first step phosphorylation हो रही है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जो है आइसोमेराइजेशन हो रही है, हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, अब ये फॉस्फोट 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, उसकी दोबारा से काइनेज एंजाइम वर्क कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है, फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट बन रहा है। फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट जो है ये हमारा सारा क्या हो गया, प्रिपरेटरी फेज, यहाँ तक सॉरी, ये हमारा जो हो गया प्रिपरेटरी फेज। इसमें अब क्या हो रहा है, ये जो 6 मॉलिक्यूल थे फ्रक्टोज के वो कन्वर्ट हो रहे हैं ट्रायोज फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं, ये 5th स्टेप हो जाएगा हमारा। अब हमारा क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, फॉस्फोराइलेशन हो रही है। ठीक है, अब ये दोबारा से क्या आएगा, 1,3 बिस फॉस्फेट जो है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारा आइसोमराइजेशन होएगी, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारा इनोलेज एंजाइम की हेल्प से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होएगा, देन डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारा पायरुवेट फाइनली बन जाएगा। तो एक ग्लूकोज से हमारे सॉरी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है जो सेल है वो अपनी रेस्पिरेशन जो है कंटिन्यू रखेगी in either an anaerobic condition or in aerobic direction. anaerobic condition में क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो सकती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकती है, और एरोबिक फर्मेंटेशन में अगर वो जाती है सेल तो वहाँ पे हमारा क्रेब साइकिल वर्क करता है। ठीक है, अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाना है या एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो डिपेंड करता है हमारे सेल के कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अभी जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हमारा इतना ही काफ़ी है, इतना एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इट इज ग्लाइकोलिसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आपको समझ आया होगा जो मैंने समझाया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगी। थैंक यू।